अलख पांडे एक ऐसा इंसान जिन्होंने सिर्फ YouTube प्लेटफॉर्म के जरिए पूरे एजुकेशन इंडस्ट्री को रिवॉल्यूशनाइज किया। उन्होंने नीट जेई जैसे बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग इतना अफोर्डेबल बना दिया कि अब हर गांव-गांव का बच्चा पढ़ सकता है और डॉक्टर बनने का सोच सकता है। लेकिन अफोर्डेबल होते ही मन में सवाल आने लगते हैं, जैसे क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज तो नहीं है? भैया मैं तो 2-3 साल का ड्रॉप ले चुका हूँ, तो इस ड्रॉप ईयर में क्या मैं सिर्फ पीडब्ल्यू के ऑनलाइन बैच से पढ़कर नीट क्रैक कर सकता हूँ? First of all, thank you so much for the amazing response that you have given in the previous video. So if you haven't watched it already, क्या कर रहे हो भाई? जाओ जाके देखो. But after watching this video. So I got loads of comments from there, and today I'll be clarifying all your doubts like offline and online में क्या difference है and what will be the best choice for you. See, to be very honest, I would say in my first attempt I had joined the Akash Institute, the 2-year classroom program. So what did actually happen? Why did I leave Akash and chose physics wala in my drop year? I think I will be the best person to answer this because I have experienced both. Today's main topic, that is how I efficiently used PW Yakin batch for the lectures, DPPs and tests that helped me to cover the entire 2-year syllabus in just 7 months. What was my teacher combination in Yakin 2.0 batch? Last के टाइम पे किसी और इंस्टीट्यूट से टेस्ट सीरीज खरीद के प्रैक्टिस करना चाहिए या नहीं? आइए बात करते हैं। मेरा नाम अलख पांडे है। मैं इलाहाबाद से बिलोंग करता हूँ। मैं एक पुअर फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हूँ, बट एक बहुत ही रिच इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड से। इसे चला चला के चप्पल मारूंगा बिना बुद्धि के इंसान। सर सच्चे लोगों से आप जीत नहीं पाओगे सर, जीत नहीं पाओगे। ये है कि सपोज अगर मैं भी कभी अपना चालू करना चाहूंगा ना, तो मैं अलग सर से फेयरवेल लेके जाऊंगा, मैं लड़के नहीं जाऊंगा। हेलो बच्चों, First of all, the difference between online and offline coaching. So there are basically 4 differences. Number 1 is the ease of attending classes. Like if you are opting for an online batch, then you are getting the comfort of your home and you don't have to travel here and there to attend the classes. Number 2 is the convenience of watching lectures. In online mode, you can watch any lecture of any chapter at any point of time and at your desired speed. But in offline coaching, when the sir explains and moves on and you don't understand, फिर वो चीज मिस हो गया. Number 3 is the traveling time. This is a big burden, I would say. I have seen people traveling long distances in order to attend classes. For example, if you are in online mode and when an offline student reaches the institute and starts studying, तब तक आपका एक चैप्टर खत्म हो गया होता है. Number 4, that is a major pros for offline coaching, is that you are always under a surveillance. There is always someone who is pushing you and guiding you so that you don't deviate from your path. But in online mode, no one is watching you and you are solely responsible for the activities you are doing. This is the biggest condition. Only if you are mature enough and you value time, then only choose an online batch. Now that you have understood that you are serious enough and you are choosing online coaching, I would suggest the Yakin batch to both freshers and droppers, because though the 2-year syllabus is packed in 1 year, but still the content is much more than enough with respect to the questions that are asked in NEET. Now here I am going to give you some smart tips regarding how to complete the 2-year syllabus in 7, 8 or 9 months, whatever time you have. Mind it, these tips are only for 12th students or droppers, मतलब जिनके पास टाइम कम है या फिर जिनको सारे चैप्टर्स के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज है, और टिप्स के साथ साथ मैं उसका बेनिफिट्स भी बताते हुए चलूंगा. टिप नंबर 1, मेक अ रफ आइडिया ऑफ द थिंग्स दैट यू हैव टू कवर. सो एक चैप्टर शुरू करने से पहले, फॉर एग्जांपल रोटेशनल मोशन, आपने देख लिया कि उसमें 8 to 9 लेक्चर्स है, ईच हैविंग अ ड्यूरेशन ऑफ 2 hours. वो चैप्टर कब तक खत्म करना है, यू प्लान इट अकॉर्डिंगली. यू शुड कंप्लीट द लेक्चर्स अलॉन्ग विद प्रॉपर नोट्स within 2 days, and 1 day for reading the notes again and solving 200 to 300 MCQs. Now as I have already mentioned earlier कि सारे लेक्चर्स देखना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि टाइम कम है. आप अपने वीक सब्जेक्ट या फिर वीक एरिया को आइडेंटिफाई करके सिर्फ उसी का लेक्चर्स देखो. जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है उसको बार बार दोहरा के कोई फायदा नहीं होने वाला. So what you can do for this? Number 1, watch the lectures at 2x speed. इससे क्या होगा, अटेंशन बना रहेगा. मतलब अब थोड़ा भी डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे तो बहुत कुछ छूट जाएगा. नंबर 2, बायो के ज्यादातर चैप्टर्स रिलेटिवली इजी होते हैं, उसमें लेक्चर्स देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. आप पहले बेसिक से एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ो, उसमें से क्वेश्चन फ्रेम करो, उसको एब्जॉर्ब करो अपने दिमाग में एंड देन गो हेड. जो पार्ट समझ में नहीं आएगा सिर्फ उसी का लेक्चर देख लो. और रही बात आउट ऑफ एनसीईआरटी टॉपिक्स की, तो वो आपको क्वेश्चन करते करते मिल जाएगा. मैं खुद का एग्जांपल देता हूँ.
जब एमडी सर और तरुण सर पीडब्ल्यू छोड़ दिए थे, दैट सरप्राइजिंगली डिड नॉट अफेक्ट मी मच बिकॉज बायो मैं खुद से ही एनसीईआरटी से पढ़ता था। मैंने शायद सिर्फ एक ही चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी का वन शॉट देखा था यूट्यूब पर। नाउ द सेकंड टिप that I feel is the most important among all and every aspirant should follow this, that is to make a track record कि आप क्या क्या कर चुके हो और क्या क्या बाकी है। Take a notebook and in there make columns for each chapter, what are the things that you have to cover। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे रोटेशनल मोशन चैप्टर के अंदर रोटेशनल मोशन, फिर उसमें क्या क्या कवर करना है, तो लेक्चर्स हो गया, नोट्स हो गया, डीपीपी हो गया, टेस्ट हो गया। तो एक एक चीज खत्म होते ही उस पर टिक लगाते जाओ। इसका बेनिफिट क्या है? पहला, आपका पढ़ाई एक सिस्टमेटिक अप्रोच हो जाएगा। दूसरा, आपको पता चलेगा कि आपकी पेस क्या है, मतलब कितना टाइम बीता और कितना चीज बाकी है। और तीसरा, आपको कभी सोचना नहीं पड़ेगा कि कौन सी चैप्टर का कौन सा वो छूट गया, लेक्चर या फिर डीपीपी, क्योंकि सब कुछ ऑलरेडी नोटबुक में है। नाउ डीपीपीज में 100 to 150 क्वेश्चंस होते हैं एंड डू दिस आफ्टर वॉचिंग ऑल द लेक्चर्स बिकॉज नहीं तो रिपीट होता हुआ दिखेगा। और पीवाईक्यूज अगर आप अभी से कर रहे हो तो 20 ईयर्स काफ़ी है। आपको दिखेगा कि 2016 और उससे पहले बायो थोड़ा थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी है, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस रेलिवेंट है और बहुत अच्छे हैं, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो डीपीपीज प्लस पीवाईक्यूज प्लस क्लास में जो कराया जाएगा प्लस टेस्ट, आई थिंक दिस इज इनफ to have grip over a chapter. Still, if you have time left with you, then only go for the modules which are available free in the library section. Tip number 3, do the difficult task first after you wake up, क्योंकि आपका ब्रेन उस टाइम पे बहुत फ्रेश और रिसेप्टिव रहता है। जैसे कई बार होता है, रात को फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल में अटक गया और वो हुआ नहीं, लेकिन सुबह उठते ही दिमाग काम कर गया और तुरंत से हो गया, है ना। टिप नंबर 4, जो फर्स्ट अटेम्प्ट की सबसे बड़ी गलती थी, ऑलवेज फॉलो वन सिंगल रिसोर्स टू अवॉइड फोमो ड्यूरिंग द लास्ट टाइम, कि कौन सा पढ़े और कौन सा छोड़ दे। नोट्स बनाना कंपलसरी नहीं है। इफ यू हैव डिसाइडेड दैट यू आर गोना स्टडी फ्रॉम द बुक, then follow the book, highlight the important points inside the book and write the extra points from the lectures in the book itself। इसका एक और बेनिफिट है, लोग कहते हैं कि 5 किताब को एक एक बार पढ़ने से बेहतर है कि एक ही किताब को 5 बार पढ़ो। Why? Because this simply creates a visual memory। अगर आप एक ही चीज को बार बार फॉलो कर रहे हो तो सक्सेसिव रिपीट्स में कम समय में कवर हो जाता है। टिप नंबर 5, और ये चीज बहुतों ने बोला होगा, मेक अ मिस्टेक बुक। ध्यान से सुनिएगा। If you read and understand it, you might remember it, but not for long. But if you write it down, it will be stabbed in your mind. Tip number 6, solve your doubts at once। सर्कल करके छोड़ मत दो कि बाद में करेंगे। आपको भी पता है कि वो बाद कभी नहीं आता। आप ऐसा सोचो कि वही क्वेश्चन अगर नीट एग्जाम में आ गया तो क्या करोगे? एकदम इंस्टेंट रिग्रेट मोमेंट हो जाएगा। लेकिन ऑनलाइन बैच है तो पर्सनल डाउट्स कौन ही सॉल्व करेगा? Here, let me introduce you to the world's only live instant tutoring app, Philo। In Philo, you can connect instantly with highly qualified mentors and solve your doubts. Otherwise, you can also choose from common or popular doubts. And with the Philo premium version, you get access to literally all that you need. You can directly connect one-to-one with your favorite tutor and study with him as long as you want. Here you get verified teachers with years of experience. Not only this, you get loads of question banks and full syllabus mock test papers based on latest NTA pattern for NEET 2024. And on top of it, you get a lifetime access to all the session recordings and the class notes that you have taken. All this for just rupees 719 per month, which is even less than the monthly fees of private coaching for one subject. And if you use my code PHILOSB010, then you get an additional 10% discount. तो देर किस बात की? Go and experience Philo Premium. Link is in the description. टिप नंबर 7, रिवीजन करने की आदत डाल लो। भाई रिवीजन चीज का जितना ही तारीफ करूँ ना उतना ही कम है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि स्पीड रन मत करो, सिलेबस खत्म करने के पीछे मत भागो, कंटेंट को दिमाग में रिटेन करने के लिए जितना मिनिमम टाइम लगता है वो दो। और रिवीजन करने का ये मतलब नहीं कि पूरा चैप्टर को फिर से पढ़ने लग गए। द बेस्ट थिंग यू कैन फॉलो इज एक्टिव रिकॉल मेथड, मतलब आप एक सेट ऑफ क्वेश्चंस उठा लो और उसी को प्रैक्टिस करो। ऑलमोस्ट आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा उसमें। या तो आप शॉर्ट नोट्स पढ़ लो या फिर हाईलाइटेड पॉइंट्स पढ़ लो। लाइक आपने एक चीज पढ़ा तो 2 weeks लेटर यू रिपीट द थिंग एंड यू रिपीट इट अगेन आफ्टर 1 month एंड सो ऑन। तो आप अपने हिसाब से शेड्यूल सेट कर लो। ये बंदा इतना पसीना बहा के मेहनत कर रहा है, इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दो। Now about the teacher combination. Since I followed the Yakin 2.0 batch, so for physics we had MR sir, जिनसे ना जाने कितने जूते और चप्पल खाए हैं मैंने। In chemistry we had Pankaj sir for organic chemistry, Amit sir for inorganic chemistry, and Sarvesh sir for
physical chemistry. In zoology we had MD sir, and in botany we had Tarun sir. If you are weak in physics, then I would strongly suggest you to study from MR sir. MR sir ने सिर्फ फिजिक्स ही नहीं, मेरा पूरा पढ़ने का तरीका चेंज कर दिया था. MD सर और तरुण सर भले ही बहुत ही अच्छे टीचर्स थे, लेकिन मैंने बायोलॉजी के बहुत ज़्यादा लेक्चर्स फॉलो नहीं किया. And that is why, as I told earlier, their living did not affect me much. मैं बहुत ही ऑनेस्टली बता रहा हूँ ये चीज़. जो लोग अफेक्ट हो गए थे और नीट से 1 महीने पहले फिजिक्स वाला वर्सेस संकल्प भारत कर रहे थे ना, उनका तो सिलेक्शन हुआ नहीं, और फिर उनको रियलाइज हुआ कि एक डिसरप्टिव सिलेक्शन ग्राफ की तरह उन लोगों का एंगेजमेंट और भी बढ़ गया और उसका बीच से कट गया. आफ्टर ऑल, आप इतना मेहनत कर रहे हो, हम कर रहे हैं सिर्फ आपके सिलेक्शन के लिए, इसलिए आपको बहुत ज्यादा शातिर बनना पड़ेगा. यू डू व्हाट यू रिक्वायर और फालतू चीजों में एक भी मिनट वेस्ट मत करो. आप ये क्लिप खुद ही सुन लीजिए. एक दूसरा टेस्ट सीरीज लेना पड़ा कि कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ. और सर टीचर लोग भी बोलते हैं कि मेरे से पढ़ो और दूसरे का कुछ टेस्ट देनी चाहिए, क्योंकि तब पता चलेगा कि दम है कि नहीं चीज़. मैं जो पढ़ाऊंगा मैं तो टेस्ट में वही दे दूंगा फिर. हाँ. So the answer is yes, you should. With my experience, I can say that आकाश इंस्टीट्यूट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सबसे ज्यादा ऑन पॉइंट और रिलेवेंट होते हैं. You can practice from anything, be it आकाश मॉड्यूल्स और आकाश फाइनल टेस्ट सीरीज और द इंटेंसिव टेस्ट सीरीज, whatever. और मेरे को सबसे बढ़िया लगता था उसका सॉल्यूशंस विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस. मतलब उससे प्रॉपर रिवीजन हो जाता था and kind of it prepares you to tackle any kind of question. I had solved like 100+ full syllabus mock tests. And सबसे बड़ी बात, I had read the explanations of each and every answer irrespective of right or wrong. इसमें टाइम तो बहुत ज़्यादा लग जाता था, लेकिन रिवीजन भी प्रॉपर हो जाता था. मैं आप लोगों को एक राज की बात बताता हूँ. I did not purchase any of the Akash test papers. भाई देसी जुगाड़ लगा के टेलीग्राम पे सर्च करो, सब फ्री में मिल जाएगा. So yeah, this was my honest verdict. And after all, as I have always been saying, the pen is in your hands. So it depends solely on you how you're gonna write your fate. See, teachers and your parents have a much bigger role, much bigger than just teaching the subject matter. जिस आप दुख दर्द और पेन में हैं वो लगे रहिए, हिम्मत रखिए, करते रहिए. बहुत सही डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, आप कर पाएंगे. अरे पागल हो गया क्या? 10 घंटे पढ़ रहा है तू? अरे पागल हो गया क्या? पूरे कमरे में नोट चिपका रखे तूने? पागल हो गया ना? तू 4 बजे उठ के रिवाइज कर रहा है. समझ जा भाई, तू सही रास्ते. 1% लोग ही गलत हो रहे हैं ना, तो 99% लोग को तो वो पागल ही लगेंगे क्योंकि वो उनके जैसा नहीं कर. Whenever you feel demotivated, watch them and you will certainly get back on your right track. So that's all for today. जम के पढ़ाई करते रहो, and I want to see you inside your dream college in the coming years. Don't forget to download the Philo app and use my code. So yes, subscribe to my channel. Let's make it a big family. Take care. Bye bye. But we got stakes for real. We looking out for the opposition. We don't do this for mass appeal. Don't make me blast it still.